as on 7th April 1948, World Health Organization was established with a vision of attaining health for all. Since 1950, this day has been observed globally to spread awareness about health. The theme of World Health Day 2026 is Together for Health, Stand with Science. I would like to repeat the theme, Together for Health, Stand with Science. This theme highlights the importance of unity, trust in science, and collective effort in building our nation. World Health Day is not just a celebration, it is a powerful global health awareness movement. It emphasizes the importance of social, physical, and mental well-being of an individual. Also, it emphasizes the importance of the need to ensure equal access to healthcare for every individual. Always remember that a healthy population is the true foundation of strong and developed nation. But apart from all this, the reality is quite worrying as according to WHO data, nearly half of the world's population still lack access to basic healthcare services. Around 5 million children under age of 5 die every year, mostly from preventable causes. More than 70% of the deaths worldwide are due to non-communicable diseases like heart disease and diabetes, which are preventable. These figures remind us that there is still a long way to go. World Health Day teaches us that health is a basic human right. It is not a luxury or a privilege. It reminds us that prevention is always better than cure and awareness can save lives. As a nursing student, I believe that our roles go beyond the walls of hospitals and clinics. We are not only caregivers, but we are also advocates, educators, and pillars of healthcare system. We provide compassionate care and support to the patient and those who in need. Now, I would like to ask you a very simple question. Can we still call ourselves progressive if millions of people are still deprived of health? No. Yes, no. Because when people are unhealthy, they cannot work properly, they cannot study properly, and cannot contribute in society and towards development of nation. So, it is important for an individual to stay healthy and contribute in the promotion of health of others also. As we all know, health is the real wealth. Today I stand before you taking the responsibility for my own health and promising myself to contribute in the promotion of health in our society. I invite you to stand beside me in this mission. So let us come together and make a promise through a small pledge. For that I would like कि आप सब खड़े हो जाए, my seniors batch 2022, my batchmates batch 2023, and my to spread awareness in my community, to support scientific healthcare practices, to work towards a healthier and happier world for all. Thank you so much. Not to take it. Thank you and have a great day ahead. Health is built with trust, with cooperation, with teamwork, and most importantly, science. We live in a and to all my juniors. Today, we students of BSc Nursing 6M are present here to demonstrate a skill. As we all know, today is World Health Day. Just as health is vital for individuals, unity is essential for nation's growth. आज हेल्थ डे के इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने के लिए जिन्होंने सिर्फ देश की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की एकता की नींव को मजबूत किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। एक ऐसे व्यक्ति जिनका इरादा लोहे की तरह मजबूत था। ये कहानी है भारत के एक लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वह पेशे से एक सफल वकील थे, लेकिन देश की आजादी और एकता के लिए उन्होंने जिंदगी अपनी राष्ट्र के नाम कर दी। पहले दृश्य में हम देखते हैं सरदार के बचपन की एक घटना जो दिखाती है कि छोटी उम्र से ही सरदार साहस और लीडरशिप के गुण रखते थे।
वल्लभ बेटा, तुम्हारा थोड़ा दर्द कर रहा होगा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं माँ, इतनी छोटी सी चोट के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा कितना बड़ा है और दर्द भी कर रहा है। इसे तो मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। वल्लभ, ये क्या कर रहे हो? गरम लोहे की छड़ी अपने फोड़े पे लगा रहे हो, इससे और दर्द बढ़ेगा। नहीं माँ, अगर मैं दर्द से डर गया तो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। बेटा, लोहे के बने। और सच ही है, यह बच्चा आगे चलकर भारत का लौह पुरुष बना। आइए चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। बारडोली सत्याग्रह। 1928 में गुजरात के बारडोली में ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 22% तक की लगान लगाई। बारडोली सत्याग्रह एक किसानी आंदोलन था जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कॉलोनियल सरकार के खिलाफ था। 12 फरवरी 1928 को शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और इस आंदोलन की अगुवाई की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए देखते हैं परेशान किसानों के हालात। ये 22% का लगान हम कैसे देंगे? इस बार तो फसल भी खराब हुई है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए सरदार पटेल ने 6 फरवरी को बॉम्बे के गवर्नर को पत्र लिखा और किसानों के लगान कम करने की मांग की। हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। गवर्नर ने पत्र को नजरअंदाज कर दिया। तब सरदार पटेल ने एक बड़ा फैसला लिया। आइए देखते हैं। कोई बड़ा कदम लेना ही पड़ेगा। पर हम करें क्या सरदार? देखो, पहले तो कोई किसान लगान नहीं भरेगा और जो ये संघर्ष हमारा हो रहा है पूरा हिंसावादी रहेगा। ध्यान से, किसी पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई से है। गुजरात की जनता ने भी किसानों का पूरा साथ दिया और अंत में सरकार ने हार मानकर टैक्स को 20% से 6% कर दिया और इसी घटना से पूरे देश भर में पटेल को सरदार के नाम से जाना गया। अब चलते हैं आजादी की ओर। 15 अगस्त 1947 मीटिंग में उपस्थित हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले होम मिनिस्टर और मिस्टर सरदार वल्लभ पटेल, ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड माउंटबेटन एंड वीपी मेनन। देश आजाद तो हो गया, लेकिन रियासतों का क्या होगा? रियासतों को फैसला खुद लेना होगा कि वह हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इतनी सारी रियासतें, इससे हिंदुस्तान को खतरा हो सकता है। लेकिन सरदार साहब, 562 रियासतों को एक करना आसान नहीं होगा। सही कह रहे हो, लेकिन एक कोशिश हमें जरूर करनी पड़ेगी। सरदार पटेल और वीपी मेनन को रियासतों को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई। आइए देखते हैं आगे। एक तरफ तो पटेल ने राजाओं में देशभक्ति की भावना जगाई, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज परिवारों के लिए रॉयल अलाउंसेस का प्रस्ताव भी रखा, जिसके अंतर्गत उन्हें भारत सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि दी जाती थी कि वो आए भारत के साथ अपनी रियासत को जोड़ें और उन्हें एक निश्चित अमाउंट दिया जाएगा ताकि वह अपना आगे का जीवन बिता सके। बीकानेर, बड़ोदरा तथा राजस्थान की कुछ रियासतें सबसे पहले भारत में शामिल हुई, लेकिन वहीं कुछ रियासतें थी जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।
रियासतें जो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, उन्हीं में से एक थी जोधपुर रियासत। आइए देखते हैं वहां की कहानी। हिंदू राजा तथा हिंदू बहुल जनसंख्या होने के बाद भी जोधपुर के राजा हानवंत सिंह का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था और मोहम्मद अली जिन्ना वो भी पाकिस्तान में हिस्सा लेने के लिए अपनी प्रस्ताव राजा के सामने रख रहे थे। राजा साहब, ये ब्लैंक पेपर लीजिए और अपनी सारी शर्तें लिखिए। पाकिस्तान आपकी हर बात मानेगा। क्या हमें कराची पोर्ट का एक्सेस मिलेगा? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री सपोर्ट सब मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। जोधपुर के पाकिस्तान में शामिल होने की खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंची। सरदार साहब, अगर जोधपुर पाकिस्तान से मिल गया तो हमारी बॉर्डर पर सुरक्षा का काफी गहरा असर पड़ेगा। हमें तुरंत ही महाराजा से मिलना पड़ेगा। महाराजा साहब, भारत आश्वस्त करता है आपको, रेल कनेक्टिविटी मिलेगी आपको और अकाल के टाइम राशन बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अगर भारत इतनी सुरक्षा की वादे करता है तो शायद यही फैसला सही होगा। और 11 अगस्त 1947 को महाराजा हानवंत सिंह ने इंस्टीट्यूशन ऑफ उस्मान अली, वह भी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वह चाहता था हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। वह चाहता था कि उसका अपना देश हो जिसमें पाकिस्तान भी पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहा था। आइए देखते हैं कैसे सरदार पटेल ने इस स्थिति को संभाला। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य रहेगा, वे भारत में शामिल नहीं होगा। एक ही देश में एक नया देश, ये तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए चाहे हमें जंग क्यों न लड़नी पड़े, लेकिन हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होगा। इस मुलाकात के बाद निजाम ने अपनी सेना बढ़ानी शुरू की, राज्य के नागरिकों पर हिंसा करनी शुरू की। हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होगा। हमें माफ कर दो महाराज। चाहे हमें जंग क्यों न लड़नी पड़े, हैदराबाद माफ भारत कर दो में महाराज। शामिल नहीं होगा। हमें बचाइए, हम पे अत्याचार हो रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अभी सरदार जी से बात करके आता हूँ। आप लोग जाइए, आप परेशान ना हो, मैं सरदार जी से बात करूँगा। और फिर बीपी मेनन जनता की बात लेकर सरदार पटेल के पास पहुंचते हैं। सरदार साहब, हैदराबाद के निजाम ने अपनी आवाम पर काफी हमला और बुरी चीजें करना शुरू कर दिया है। इस पर तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या हमारी सेना तैयार है? 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया और सिर्फ 4 दिन के युद्ध के बाद ही हैदराबाद पर भारत का कब्जा हो गया और इसके बाद निजाम को हैदराबाद का पहला गवर्नर भी बनाया गया। मैं समर्पण करता हूँ। और इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ता, बुद्धि और देशभक्ति से 562 रियासतों को एक कर दिया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। यही कारण है कि आज हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एक ऐसा नेता जिन्होंने हमें एकता की शक्ति दिखाई। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। जय हिंद, जय हिंद। है क्योंकि भविष्य उनका नहीं होता जो बीमारियों से लड़ते हैं, भविष्य उनका होता है जो मिलकर विज्ञान के साथ स्वास्थ्य को बनाते हैं। अगर आज आपको एक दिन के लिए अपने शरीर को बदलने का मौका मिले
तो क्या आप उसे वैसे ही रखना चाहोगे जैसा वो अभी है? आज मैं यहाँ सिर्फ विश्व स्वास्थ्य दिवस के पर बोलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक सवाल लेकर आई हूँ। क्या हम सच में स्वस्थ हैं या सिर्फ बीमार नहीं हैं? हम रोज कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या ठीक होना ही स्वस्थ होना है? दोस्तों, आज की दुनिया में हम रोज जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, विटामिन्स लेते हैं, लेकिन फिर भी हम थके हुए, तनाव में और अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं है, यह हमारी मन, हमारी सोच और हमारे रिश्तों का भी आईना है। आज का सबसे बड़ा रोग क्या है? ना तो बुखार, ना ही खांसी, बल्कि तनाव, अकेलापन और खुद को ना समझ पाना। हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन को चार्ज किया है? हम दूसरों की खुशी के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा, मैं सच में खुश हूँ? विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं, एक जीवन शैली है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा संतुलित भोजन और सबसे जरूरी थोड़ा सा खुद के लिए समय। दोस्तों, अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दुनिया की कोई दवा हमें स्वस्थ नहीं बना सकती। तो आइए आज एक छोटा सा वादा करते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर का नहीं बल्कि अपने मन और सोच का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ही एक स्वस्थ समाज बना सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हम जिंदगी भर कल से ध्यान रखेंगे कहते रहते हैं और एक दिन कल हमारे पास होता ही नहीं है। धन्यवाद। मुझे विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्वास्थ्य जैसे अत्यंत आवश्यक विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। हर वर्ष 7 वर्ष को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सही ही कहा गया है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। जैसे अनियमित खान-पान, फास्ट फूड, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव और मोबाइल का अधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक नर्सिंग छात्र होने के नाते मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। धन्यवाद। To deliver a speech on the topic World Health Day. World Health Day is a global health awareness day celebrated every year on 7 April under the sponsorship of World Health Organization. This day marks the founding of World Health Organization in 1948. It serves as the global campaign to raise awareness about a specific critical health topic, promote health as a basic human right, and encourage correct action for better, more equitable healthcare worldwide. We have heard most commonly that health is not just about the absence of illness, it's the state of complete physical, mental, and social well-being.
In today's fast-paced world, we often ignore our health while chasing success, money, and achievement. According to WHO, around 1 in 3 people globally do not have access to essential health services. Nearly 5 million children under the age of 5 die every year. Mental health conditions affect about 1 in 8 people globally. WHO reminds us that millions of people around the world still lack access to basic health care. It aims to raise global awareness of a specific critical health care. Together for Health, Stand with Science is the theme for World Health Day 2026 announced by World Health Organization. This year's observance launched a year-long campaign celebrating the power of scientific collaboration to protect the health of people. The campaign invites people everywhere to participate by celebrating scientific achievement, engaging with evidences, sharing personal stories of how science improves life. At last, I want to wind up my speech by saying that our health is our greatest wealth. Ask yourself, what is the value of dream if the body is too weak to chase it? What is the value of success if health is lost all along the way? On this World Health Day, let us not just speak about the health, let us fight for it, protect it and demand it for every single life. Thank you. Respected seniors, my batchmates and my dear juniors. सबसे पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड हेल्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हेल्थ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। इस साल का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद द साइंस। मतलब हमें एक साथ मिलकर अपनी और समाज की सेहत का ध्यान रखना है और अंधविश्वास को छोड़कर साइंस और सही जानकारी पर विश्वास करना है। इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए आज हम बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट एक स्क्रिप्ट लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए मिलके इस प्रस्तुति का आनंद लेते हैं और एक महत्वपूर्ण संदेश को समझते हैं। हमारे समाज में एक गहरा अंधविश्वास है कि कुछ बीमारियां या दुर्घटनाएं भगवान की सजा या डिवाइन पनिशमेंट से होती है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा होता है या फिर सिर्फ ज्ञान की कमी है? उसी सच को सामने लाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा पहला दृश्य, अंधविश्वास और उपचार। सीन 1। एक कमरे में जहाँ चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के निशान हैं, उसकी माँ और चाची उसके पास बैठकर रो रही हैं। ये क्या होगा मेरी खुलबू किसकी गुलदस्ती लग गई है? ये माता का प्रकोप लगा होगा, कभी रिश्ते में प्राप्त किया होगा। क्या हुआ मेरे लल्ला को? क्या हुआ? सही कह रही हो बहन, देखो तो इसका शरीर कितना तप रहा है। हमने कितनी मन्नतें करी पर देवी का कोप शांति नहीं हो रहा। हमें किसी डॉक्टर को नहीं बल्कि ओझा को बुलाना चाहिए। सही कह रही हो बहन, हमें माता का प्रकोप कम करने के लिए कमर तक छिड़कना होगा और अगरबत्ती जलानी होगी, तभी माता का प्रकोप कम होगा। अब नर्स आती है। अरे ये क्या लगा रखा है? कमरे में इतनी भीड़ और धुआं, ये समीर के लिए सही नहीं है। ए लड़की, तू क्या जाने, ये कोई शरीर की बीमारी नहीं बल्कि देवी का प्रकोप है। इसमें तेरी दवाइयाँ, तू अपनी दवाइयाँ बाहर रख, इसमें कोई दवाई काम नहीं आएगी, इसमें सिर्फ प्रार्थना काम आएगी। आंटी प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन इसे कोई प्रकोप मत समझिए। ये चिकन पॉक्स यानी कि चेचक है, जो कि एक वायरस, वायरोला वायरस की वजह से होता है। ये कोई पाप नहीं, ये एक संक्रमण है। वायरस? क्या वायरस? क्या बकवास कर रही है? हमारी दादा नानी के जमाने से इसे माता का रूप कहा जाता है। तू क्या हमें समझाएगी? अगर आप इसे दैवीय मानकर इसका इलाज नहीं करेंगी तो ये धीरे धीरे आपको और पूरी सोसाइटी में फैलता जाएगा। तो क्या ये ठीक हो सकता है?
जी जरूर, लेकिन तब जब आप इसको एक पाप की तरह ट्रीट नहीं, एक मरीज की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक अकेले कमरे यानी कि आइसोलेशन में रखें, साथ ही साथ इसके कपड़े गर्म पानी में धोएं। ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इसकी डॉक्टर्स की दवाइयाँ टाइम पे चलाएं। आप सही कह रही है, हम बहुत डर गए थे कि इसे क्या हो गया, हमें लगा ये माता का प्रकोप है। कम ऑन आंटी, मॉडर्न बनिए। आत्मा को नहीं लगती बीमारी, शरीर को लगती है। अब आप बाहर जाइए, मुझे इसका चेकअप करने दीजिए। बीमारी कोई देवी दंड नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक कारण से होती है। अंधविश्वास इलाज में देरी करता है और बीमारी को बढ़ा सकता है। चलिए अब देखते हैं गांव के दो दोस्त जो शराब की लत में डूब गए हैं, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने दूसरे दृश्य की ओर, शराब मजा या सजा। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बिरजू और राजू हाथ में गिलास लिए बैठे हैं। अरे भाई राजू, क्या कमाल की चीज बनाई है यार, जिस तरह बनाई है। एक घूंट अंदर और तन बदन में बिजली दौड़ जाती है। और पता नहीं कुछ लोग क्यों उसे जहर जहर बोलते रहते हैं। अरे ये तो गांव का एनर्जी ड्रिंक। सही कह रहे हो बिज्जू भाई, लोग पता नहीं कहते हैं शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। अरे भाई लीवर है, पनीर खराब हो जाएगा। और वैसे भी भाई जीवन है तो पीना है, वरना मर के क्या जीना है। अरे एक समझदार तुम ही बच्चे हो, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, वरना वो एक शहर की सिस्टर आई थी ना, वो बोल रही थी ये जहर है। अरे हमने भी बोल दिया, दीदी गजब बेइज्जती है। हम यहाँ थकान मिटा रहे हैं और आप ज्ञान पेल रही हो। तभी नर्स आती है। तुम लोग अपनी थकान मिटा रहे हो या अपनी चिता की आग जला रहे हो? ये क्या हाल बना दिया है? अरे सिस्टर जी आइए आइए आइए। अरे हमारी एक छोटी सी मदद तो कीजिए। ये बताइए कि इसमें कौन सा जहर है, इंसान को मारने वाला, चूहे मारने वाला, या किसी के दिमाग के कीड़े मारने वाला? अरे हम तो सदियों से पी रहे हैं, आज भी चकाचक हैं। अरे मेरे पड़ोसी पीते थे, 100 साल तक जिए थे वो। चकाचक, अपनी हालत तो देखो बिरजू, तुम्हारी आंखें पीली पड़ चुकी है, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे कैसी बेतुकी बातें करती हैं यार आप भी। अरे अब गांव का मर्द शराब नहीं पिएगा तो क्या शरबत पिएगा? अरे मर्द के जीवन में रिस्क नहीं तो क्या है फिर? रिस्क तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ हो रहा है। तुम्हें पता है शराब तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स को मार देती है। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है बिरजू? अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ये तो नई चीज लिख रही है, इसमें तो लिखा नहीं है। अरे ये शहर वालों के अपने अलग चोचले होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। बिरजू की पत्नी रोते रोते नर्स के पास आती है और अपनी परेशानी बताती है। सिस्टर जी जरा इन्हें समझाइए, घर में खाने को नहीं है और ये यहाँ अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं। बच्चों की फीस देनी बाकी है और ये सारे पैसे दारू में वहाँ देते हैं। जरा आप इन्हें समझाइए। बिरजू ये मजाक की बात नहीं है। तुम्हें पता है शराब से लीवर सिरोसिस होता है। जब अस्पताल के बेड में खून की उल्टी करोगे ना तब समझ आएगा। अरे सिस्टर जी ये आप क्या कह रही हैं? लीवर सिरोसिस ये क्या होता है? मैं तो कब से पी रहा हूँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर अब तो मुझे लत लग चुकी है। अब क्या करूँ, शरीर ही काम नहीं करता। लत बहानों से नहीं दवाइयों से छूटती है। कल सेंटर आना, वहाँ तुम्हें थेरेपी और दवाई दोनों मिलेगी। और एक बात याद रखना, ये मर्दान की शराब की बोतल उठाने में नहीं, परिवार की जिम्मेदारी उठाने में होती है। अरे बिज्जू, सिस्टर तो सीरियस हो चुकी है। अब लगता है कल से पार्टी नहीं, परहेज करना पड़ेगा इसका। सही बोल रहे हैं राजू भाई, कल से पीना बिल्कुल बंद। कल से। शराब की लत मजाक नहीं, एक गंभीर बीमारी है। ये लिवर सिरोसिस, मानसिक कमजोरी और परिवार टूटने का कारण बनती है। सही समय पर छोड़ना, इलाज और परिवार का सहयोग ही समाधान है।
दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में आज भी खुलकर बात नहीं की जाती है। एक ऐसा विषय जिसे सुन के हमें शर्म और कलंक से जोड़ देते हैं, जबकि वो एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। बढ़ते हैं अपने अगले दृश्य की ओर, जिसका शीर्षक है किचन, कढ़ाई और कलम। सीन, पिंकी किचन में प्रवेश करती है। पिंकी किचन में प्रवेश करती है। सीन, पिंकी किचन में प्रवेश करती है। माँ, प्यास लग रही है, कम से कम पानी तो दो, गला सूख गया है प्यास के मारे, और आपने मुझे ऐसे कैसे रख रखा है? अरे रुक रुक, अंदर कहाँ आ रही है? बाहर ही रहो, कहाँ फटफड़ा के अंदर जा रही है? अभी तेरे उंदरे चल रहे, तुझे अंदर प्रवेश नहीं करना है। रसोई की में आना भी मत, दहलीज में खाना देख रही है, उसे छूना भी मत, जहर बन जाएगा। और चार की भगोनी देख रही है, वो उधर सट जाएगा। दूर रह, बहुत ऊंचा, मैं इसे देखती हूँ। माँ समझाइए ना, दादी कैसी बातें कर रही है? हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होते। देख बेटा, ये घर का नियम है, मैं भी इसे मानती हुई आई हूँ और अब तुझे भी मानने पड़ेंगे, यही हमारे रीति रिवाज। अरे तू चल। नर्स सीन में प्रवेश करती है। अरे पिंकी, तुम इतनी धूप में यहाँ, और ये बर्तन इतनी दूर क्यों रखे हैं? अरे दूर रहिए, आप उनसे दूर रहिए। अभी अपने उंदरे में अभी वो अशुद्ध है। अगर घर में प्रवेश करेगी ना तो देवता हमारे नाराज हो जाएंगे और घर का खाना भी जहर बन जाएगा। माँ जी, आप औरत होके कैसी बात कर रही हैं? ये सब अंधविश्वास है। ये हमारे पुरखों से चलता हुआ नियम है। अगर तू अचार को छुएगी ना तो वो सड़ जाएगा। माँ जी, अचार बैक्टीरिया और नमी की वजह से सड़ता है, ना कि किसी के छूने से। ऐसा होता तो फैक्ट्रीज में हजारों औरतें काम करती है, वो तो अचार कब का सड़ जाता। अरे इससे तो मैं क्या समझाऊं, बहू आप तू ही समझाए। देखिए सिस्टर जी, ये सब हम पिंकी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं और इससे हमारे घर में भी साफ सफाई बनी रहेगी। और महामारी का खून तो बहुत गंदा होता है। गंदा? महामारी का खून गंदा होता है? माँ जी, आप उसी प्रक्रिया से आई है जिस प्रक्रिया से माँ से खून निकलता है। आप कैसी बात कर रही है? और आपको इन दिनों तो पिंकी के पोषण का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही है? लगता है इनकी बात 16 आने सच है। बहू, हमें पिंकी को घर आने देना चाहिए। सुना दादी, सिस्टर ने क्या कहा? अब आपको भी अपना सोच बदलने की जरूरत है। हाँ पिंकी, चल अंदर आ और खाना भी खा, चाट भी खा ले। पीरियड्स कोई गंदगी या अपवित्रता नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और स्वास्थ्य प्रक्रिया है। इस दौरान लड़की को आराम, शोषण और सम्मान की जरूरत होती है। अंधविश्वास जैसे अलग बैठना, छूने से मना करना मानसिक और शारीरिक नुकसान करते हैं। सही जानकारी और समझ से ही समाज आगे बढ़ सकता है। हमारे समाज में प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सी गलत धारणाएं आज भी मौजूद हैं। इसी के साथ चलिए हम अपने अगले दृश्य की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है डाइट और गलत रस्में। सीन, ममता कमरे में बैठी है। सासू माँ उसे बहुत कम खाना दे रही है। माँ जी, भूख लग रही है, कम से कम एक रोटी तो दे दो खाने के लिए। अरे बहू नहीं, अभी खाना मत खा, अपने हाथ रोक कर खा। अगर तू ज्यादा खाना खाएगी ना तो बच्चा फूल जाएगा और तुझे भी डिलीवरी में परेशानी होगी। फिर मत बोलना। बिल्कुल सही कह रही हो बहन आप। बच्चे का वजन कम हो तो आराम डिलीवरी में आसानी होती है। ज्यादा दूध घी खाएगी तो ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी। अपने जमाने में तो हम आधा पेट खाकर ही सारा काम कर लिया करती थी। तुम सही कह रही हो। क्या सुन रहा हूँ मैं? ममता का वजन पहले से ही इतना कम है और आप लोग उसे और कम खाने की सलाह दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
अरे डॉक्टर जी आप होंगे पढ़े लिखे पर हमें भी काफी तजुर्बा है, ऐसी धूप में बाल तो सफेद करे नहीं हमने। ये एक बहुत बड़ा झूठ है कि अगर माँ को कम खिलाएंगे तो डिलीवरी आसान होगी। ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप माँ को कम खिलाएंगे तो बच्चे को कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है और उसका दिमागी विकास तक रुक सकता है। और अगर वो माँ कमजोर होगी तो वो इतना दर्द होगा उसको सहन ही नहीं पाएगी डिलीवरी के टाइम पे। आसान डिलीवरी माँ को कम खाने खिलाने से नहीं होती, माँ को सही पोषण और पोजीशन देने से होती। लगता है डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इसे हमें प्रॉपर खाना खिलाना चाहिए जिससे बच्चा भी स्वस्थ हो मेरी तरह। डॉक्टर साहब की सलाह के बाद ममता का एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। अरे देख रही हो बहन, बच्चा डॉक्टर साहब ने बोला था ना खाना खिलाओगी तो बढ़िया होगा, स्वस्थ देख रही हो मेरी तरह हुआ एकदम लड़का। बस तुम्हारी तरह तेज ना बने। अरे बहन देखना तुम। हमें ये दिखता है कि ममता की सास माँ का पीला दूध फेंकने जा रही होती है। बेटा ये जो गाढ़ा पीला दूध है ना ये बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं है, इसे मैं निकाल कर फेंक देती हूँ। बच्चे को शहद और बकरी का दूध चटाएंगे, ठीक है। डॉक्टर सिंह में प्रवेश करते हैं। रुक जाइए माँ जी। अरे डॉक्टर ये दूध बेकार है, ये कहीं बच्चे के पेट में जम गया तो। नहीं, ये कोई दूध खराब या फटा हुआ नहीं है। ये माँ का पहला काढ़ा दूध यानी कि कोलोस्ट्रम है। इसमें बच्चे के लिए पूरी जिंदगी के लिए सारी शक्तियाँ और इम्यूनिटी होती है। इसे फेंकना मतलब बच्चे के सुरक्षा कवच को फेंकना, समझिए आप। डॉक्टर साहब बाजी कह रही है शहद चटाना शुभ होता है। नहीं, कोई शहद या ऊपर का दूध नहीं, सिर्फ माँ का पहला काढ़ा दूध ही बच्चे के लिए सही होता है, वही उसके लिए अमृत है। उसके अलावा कुछ और दिया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमारे दादा दादी तो कहा करते थे। चुप रहिए आप। आपकी दादी के समय में मृत्यु दर देखा था। आज अगर आपको अपना पोता रिस्ट पुष्ट चाहिए तो ये सब धक्यानुसी बातों में बिलीव मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ वही मानिए, सिर्फ माँ का पहला काढ़ा दूध ही पीजिए। ठीक है, लगता है डॉक्टर साहब अकलमंदी की बात कर ही ली इन्होंने आज। ठीक है बेटा, इसे अपना दूध पिला। बच्चे की सेहत के लिए तुम्हारी है। ठीक है, और तुम्हारी साथ में है। चलो बेटा। जैसा कि हमने देखा, अंधविश्वास और पुरानी गलत सोच माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा साइंस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पर। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। आज भी कई लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते हैं, पर क्या ये सही फैसला है? चलिए इसे देखते हैं हम अपने आखिरी दृश्य में, जिसका शीर्षक है हॉस्पिटल पर अविश्वास या अंधविश्वास। सीन: बुद्धराम खाट पर पड़ा दर्द से कराह रहा है। चाची उस पर कोई लेप मल रही है। अरे बुद्धराम भाई साहब लेप लगा दिया है, सुबह तक तबीयत एकदम चकाचक हो जाएगी। और ये हॉस्पिटल क्या जाना है? मैंने सुना है वहाँ लोग सिर्फ सुइयां चुभोते हैं और पैसे लूटते हैं। हाँ एकदम सही कह रही हो, मैंने भी सुना है जो वहाँ एक बार जाता है वो सिर्फ तारा बनकर ही बाहर आता है। हाँ वहाँ लोग तारा बन जाते हैं, बिल्कुल मत जाना। मैं नहीं जा रहा वहाँ। चाची क्या सुन रहा हूँ मैं? आप क्या बात कर रही है दादा से? अब हल्दी चंदन के लेप से दादा की बीमारी ठीक करेंगे? ऐसे दादा ठीक नहीं होने वाले, और बुरे हो जाएंगे। ये अंदरूनी मामला है, दादा की और हालत खराब हो जाएगी, दादा मर भी सकते हैं। वीरू तो शहर जाके बहुत बिगड़ गया है। तुझे नहीं पता कि जो हॉस्पिटल जाता है वो जाता तो 2 पैरों पर है, लेकिन आता 4 कंधों पर है। अरे चाची आप रहने ही दीजिए, दादा आपसे बात करता हूँ। दादा आप तो इस गांव के धुरंधर हैं, आप तो अक्कलकोट के पुलिस वालों जैसा दम है आप में, पर मैं क्या देख रहा हूँ इस धुरंधर की हालत बंदर से ही बुरी हो चुकी है। ऐसे कैसे चलेगा दादा? आपको असली धुरंधर पता है कौन होता है? जो बीमारियों के सामने, हॉस्पिटल के सामने, हर दिक्कत के सामने एकदम सीना तान के खड़ा हो। और आप ऐसे भिकी बिल्ली बने हुए हैं, आप एम्बुलेंस से डर रहे हैं।
जी आपका पोता बिल्कुल सही कह रहा है। आप जितनी देर करेंगे आपको इन्फेक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। सरकारी अस्पताल पर भरोसा कीजिए, वहाँ के दवा और डॉक्टर आपको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। आप डरिए मत। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है लोग कहते हैं कि वहाँ मुर्दों का सौदा होता है। ताऊ जी गजब बेइज्जती है। हम वहाँ पे दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं और आप जो सौदा बोल रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो इलाज बिल्कुल मुफ्त है और वहाँ के डॉक्टर जी जान से आपका इलाज करेंगे, इसलिए आप डरिए मत, चलिए हमारे साथ। सुन लिया आपने दादा, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। अब चलिए, अगर आप अभी नहीं उठे तो मेरी बिल्कुल सटक जाएगी। आपको कंधे में जबरदस्ती उठा के ले आऊंगा, और अगर आप तब भी नहीं माने तो फिर देख लेना, अगर आप मरे तो मरने के बाद मैं कंधा नहीं दूंगा आपको। लेकिन वीरू, वो दवाइयाँ तो बहुत कड़वी होती है। आप नीम हलीम का जो जवान गोला दादा को पिला रहे हैं वो बड़ा मीठा होता है। दादा आप ही बताइए क्या हालत हो गई है आपकी। आपके मुंह में दिख रहा है आपने कुछ अच्छा से नहीं खाया है बहुत टाइम से। चलिए, अभी एम्बुलेंस बाहर ही वेट कर रही है, अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। आपके पूरे गांव में आपके चर्चे होंगे कि इन्होंने बीमारी को हरा दिया है। सच में बुद्धराम जी, चलिए हमारे साथ। अगर जिंदगी में 2-4 दिन ज्यादा जीना चाहते हैं, अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल आइए, आपकी जिंदगी बढ़ा दूंगा। चलिए। अस्पताल और डॉक्टर जीवन बचाने चल बेटा, के लिए- तू कह रहा है तो चल जाते हैं। माइंड ब्लोइंग दादा, माइंड ब्लोइंग। आप करना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्पताल और डॉक्टर जीवन बचाने के लिए होते हैं, डराने के लिए नहीं। देसी नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। समय पर इलाज न लेने से बीमारी गंभीर हो सकती है। अंधविश्वास छोड़ के विज्ञान और चिकित्सा पर भरोसा करना जरूरी है। तो आज इस नाटक के माध्यम से हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी गलत सोच और अंधविश्वास हमारी सेहत, हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों तक को प्रभावित कर देती है। चाहे वो प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स हो या हॉस्पिटल पर विश्वास, हर जगह एक ही बात सामने आती है। जहाँ अंधविश्वास होता है वहाँ नुकसान होता है, और जहाँ साइंस होती है वहाँ सुरक्षा और जीवन होता है। आज के दिन हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि हेल्थ सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं होता है, बल्कि एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है। अंधविश्वास से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, साइंस से जुड़ोगे, साइंस से जुड़ोगे, तभी तो सच में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनोगे। तभी तो सच में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बने हुए। थैंक यू।